नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र में नीच पर हंगामा, कल आएगा आम बजट। गुजरात की धरती पर फिर दौड़ेंगे चीते, कच्छ के बनी में बनेगा चीता प्रजनन केंद्र। वडोदरा के रिहायशी इलाके में देह व्यापार का पर्दाफाश, 3 पुरुष और 3 महिलाएं गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली के संसद में मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोले। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सीटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है। Honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. Speaker sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister sir. So whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. Sir, regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is when hiding nothing. Everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar Police and CBI are proactively taking action in that. वहीं इस मामले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue,
what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का ये कहना है कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की इरेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किए? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटने की कोशिश की थी। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है
कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। गुजरात के कच्छ की धरती पर फिर से चीते चहलकदमी करेंगे। गुजरात सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यहां पर एक संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ की बनी ग्रासलैंड चीतों के लिए अनुकूल मानी जाती है। सफेद रेगिस्तान सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पहले ही कच्छ दुनिया भर में अपना डंका बजा रहा है और अब कच्छ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। कच्छ में फिर से चीते की वापसी होगी। गुजरात सरकार ने कच्छ में चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। गुजरात के कच्छ के बनी में चीता बिल्डिंग सेंटर के लिए प्रशासनिक अनुमति मिले जाने से फॉरेस्ट विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बन्नी के भगाड़िया इलाके में चीता बिल्डिंग सेंटर में ही पिंजरे के अंदर बच्चों को बड़ा करने का आयोजन किया गया है, जिसमें पानी के पॉइंट, वन तालाब, आर्टिफिशियल शेड, बैठकर चीते का निरीक्षण करने के लिए माउंट समेत की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही पिंजरे में चीते को भी हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी।
बनी ग्रासलैंड डिवीजन के DCF BM पटेल ने चीता बिल्डिंग सेंटर प्रोजेक्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया है। આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આપણે જે ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનાવેલો જેની વહીવટી મંજૂરી 2 અઠવાડિયા પહેલાં આપણને ગુજરાત સરકાર તરફથી મળેલી છે, તો એ વહીવટી મંજૂરીના આધારે આપણે ટેન્ડરિંગ પ્રોસિજર અત્યારે શરૂ કરેલી છે અને એમાં ખાસ કરીને જે પ્રોજેક્ટ એરિયા છે 500 હેક્ટર એને આપણે ફેન્સિંગ જે કરવાની છે એના ટેન્ડરિંગ માટે તાંત્રિક મંજૂરી આપણે મેળવવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલી છે। ખાસ કરી બાંધકામની વાત કરીએ તો જે મુખ્ય બાંધકામ છે આ 500 હેક્ટર એરિયાનું ફેન્સિંગ છે, જે એવરેજ 10,000 મીટર જેટલું થાય છે રનિંગ મીટરમાં, એ કામગીરી મુખ્ય છે। એના સિવાય અંદરના વિસ્તારોમાં આપણે એવરેજ 50 હેક્ટરથી લઈને 100 હેક્ટર સુધીના બીજા બોમા બનાવવાના છીએ, જેને સોફ્ટ રિલીઝ બોમા કહે છે, જેમાં ચિત્તાને આપણે મૂકવાના છીએ। હાલ અમારા જે સ્ટાફ છે 5 સ્ટાફ એ અત્યારે પ્રોજેક્ટની કામગીરીનું ધ્યાન રાખી રહ્યા છે, પણ જ્યારે એકવાર ચિત્તા લાવવાના થશે ત્યારે દરેક ચિત્તા પાછળ મોનિટરિંગ ટીમને એલર્ટ કરવાનું પ્લાનિંગ પણ અમે કરી રહ્યા છીએ। ચિત્તા મુખ્યત્વે આપણે આફ્રિકાની જે સાઉથ આફ્રિકા અથવા નમીબિયા કેન્યાની જે વસ્તી છે ચિત્તાની ત્યાંથી આપણે લાવવાનું પ્લાનિંગ છે, એ NTCA મારફતે થશે અને ખાસ કરીને એરલિફ્ટિંગથી લાવવાના થશે। જે પ્રોજેક્ટ એરિયા છે બગાડિયા એની આજુબાજુના જે ગામ છે જેમ કે બુરકલ છે, હાજીપીર છે, ભીટારા છે, લુણા નાના મોટા છે, સસલો બગાડિયા, આ બધા જ ગામના આગેવાનો સાથે અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય શ્રી માનનીય કેશુભાઈ સાથે અમે એક મીટિંગ કરી હતી અમારા સિનિયર ઓફિસર સાહેબની હાજરીમાં, અને દરેકને પ્રોજેક્ટ બાબતે સમજ આપી હતી કે આમાંથી એમના માલઢોરને કોઈ નુકસાન નથી, કારણ કે સમગ્ર પ્રોજેક્ટ એક ફેન્સિંગમાં જ આપણે હાથ ધરવાના છીએ, તો એ લોકો સર્વસંમતિથી પ્રોજેક્ટ એરિયાનો વિસ્તાર નક્કી કરીને અમને આપેલો છે। गुजरात के वडोदरा शहर में वाघोड़िया रोड पर गुरुकुल 4 रास्ता निकट रिहायशी इलाके में चलाए जा रहे देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। स्थानीय निवासियों ने ये जानकारी पानीगेट पुलिस को दी थी। पानीगेट पुलिस ने स्थानीय निवासियों की सहायता से यहां देह व्यापार को उजागर किया है। पुलिस ने यहां छापेमारी करते हुए 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को रंगे हाथ पकड़ा है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस के साथ मिलकर वॉच बिठाकर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। इन सभी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। ये वाघोड़िया डीमार्ट वाला रोड है, ये योगी नगर UFC प्लॉट है और ये मकान नंबर 6 है, और यहाँ पे 3-4 महीने से कुछ कुटन खाना जैसा चलता रहा, तो इधर हमने वॉच रखी और मकान मालिक को बोला कि इधर क्या चल रहा है, इतने रोज आते जाते क्यों है, तो वो लोग बोले कि फ़ोन किया, तो बोलते हैं कि हम लोग तो के टिफ़िन सर्विस करते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड का करते हैं, तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है चलो। फिर हमने कंटिन्यू 2-3 महीने से लोग से वॉच रखी, फिर हमने देखा नोटिस किया कि नहीं ये तो टिफ़िन नहीं है, रोज़ अलग अलग जेंट्स आते हैं जाते हैं, टिफ़िन विफ़िन कुछ नहीं है। फिर हमने ये भी नोटिस किया कि 1-1:30 के बीच में से 4-4:30 बजे आते और रोज़ अलग अलग आते, 2 घुसते 2 निकलते। फिर हमने कंटिन्यू फिर वापस मकान मालिक को फ़ोन किया कि ये सब क्या चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि वापस फ़ोन किया था कि नहीं कि ये लोग तो आजू बाजू वाले हमको परेशान करते हैं, हमारा कुछ चलता नहीं है। फिर हमने बोला अच्छा ठीक है, तो 2 दिन वो लोग ने बंद रखा, तो फिर वापस से 3-4 दिन से फिर से चालू हो गया, तो कंटिन्यू 1 बजे से 3-4 बजे तक वो लोग रोज़ अलग अलग आते जाते। फिर आज एक आदमी आया और उधर अंदर घुस गया, तो वो लड़की डर गई, फिर अगले दिन मेरे घर में घुस गया, पूछते नहीं है, पूछते तो बोलते कुछ नहीं है। फिर आज हम लोग ने सब सोसाइटी वाले ने मिलके वो लोग के घर में वीडियो बनाया और घुस गए अंदर, तो देखा तो एक ऊपर ये रूम है, उसके ऊपर एक रूम है, तो वहाँ पे वो लोग सब ऐसा गंदा काम चल रहा था, सब गंदा काम चलता था। और जैसे ही हमने सब देखा मोबाइल में रिकॉर्ड किया और तुरंत 100 नंबर पे हमने फ़ोन कर दिया। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बरसात बरस रही है, जिससे ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर से अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सावन महीने में मेघराज खुद सोमनाथ महादेव का महाअभिषेक कर रहे हैं। ऐसी श्रीकार वर्षा यहाँ हो रही है। साथ ही मंदिर परिसर से सटे हुए समुद्र का उफान भी यात्रियों को अभिभूत कर रहा है।
गुजरात के सूरत में पिछले कई दिनों से धुआंधार बरसात हो रही है, जिससे हाल बेहाल हो गए हैं। सूरत के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सूरत पुलिस घुटनों तक भरे पानी से बाहर निकलने में लोगों की सहायता कर रही है। सूरत की कई बस्तियां पानी में डूब गई हैं, जिससे गरीबों को लाखों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। सूरत के कतारगाम में होली बंगला निकट कई दुकानें पानी में डूबी हुई नजर आईं। ये ओम नगर पड़ता है, ये 7 नंबर गली लिंबायत मिट्टी खाली माता जो ये हर साल का समस्या यही आता है और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन सिर्फ आता है, कोई मतलब नहीं आता है। आपने इसके बारे में सरकारी अधिकारी बराबर कंप्लेन होती है, लेकिन इस बार भी कंप्लेन गई है, लेकिन अभी भी कोई मामला नहीं किया जा रहा। हर साल परेशानी यहाँ पर हाथ लगती है। अब यह सरकार का जिम्मेदारी है कि यह परेशानी से लिंबायत के लोगों को मुक्ति दिलाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जिले की नदियां उफान पर हैं। जिले की 5 तहसीलों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। दुधवा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी भर गया है। दुधवा नेशनल पार्क में मोहाना और सुहेली नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। जंगल में पानी भर जाने से जंगली जानवर उच्च स्थान की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे आसपास के गांव में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है। जंगल में पानी भर जाने से पेट्रोलिंग भी नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा फायदा शिकारी और तस्कर उठा रहे हैं। कमांडो लोग चले हैं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। इस बार का बजट तय करेगा देश का भविष्य। क्या होगा आपके टैक्स पर असर? क्या सस्ता होगा और क्या होगा महंगा? क्या पड़ेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष पर असर? आम जनता से लेकर राजनेता और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। 3 दिन का महाकवरेज देखते रहिए सिर्फ वीएनएम टीवी पर। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आज सोमवार का दिन है जिसे शिवजी का दिन माना जाता है और सोमवार से ही पवित्र सावन महीने की शुरुआत भी हो गई है। देश भर के शिव मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने मिल रही हैं। देश भर के शिवालयों के साथ साथ मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भी भक्तों का तांता लगा है। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर की यह तस्वीरें भक्तों का उत्साह दिखा रही हैं। सुबह 5 बजे मंगला आरती के बाद से ही बाबा पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना और अभिषेक का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना तट पर विराजित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में पवित्र सावन महीने में लाखों भक्त दर्शन और अभिषेक के लिए पहुंचते हैं। वहीं दूर दराज से कांवड़िए भी कांवड़ यात्रा के साथ महादेव का अभिषेक करने यहां पर श्रावण माह में आते हैं। सावन का प्रथम सोमवार है। बाबा पशुपतिनाथ महादेव जी के दर्शन करने आए थे। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, सनातन धर्मियों से, कि आज के दिन सभी को आना ही चाहिए और कम से कम सावन के सोमवार, एक सोमवार को तो यहाँ आके दर्शन करना ही चाहिए। अपने क्षेत्र का सबसे प्राकृतिक स्थल और देव स्थान है और सबसे बड़ा स्थान है। दूर दूर से लोग आते हैं, तो कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों को तो आना ही चाहिए। आज सावन का पहला सोमवार है और मैं बाबा पशुपतिनाथ, जो कि आठमुखी मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है, ये पहला ऐसा मंदिर है जो आठमुखी है। और नेपाल में एक जो दूसरा मंदिर है वो 5 मुखी है। ये मंदसौर में पशुपतिनाथ बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ। हमने बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन किए, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा भी लगा और हम महादेव और माता पार्वती की रंगोली भी बना रहे हैं यहाँ पे और हम हमारी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। प्रतिवर्ष पूरे सावन माह में मंदिर परिसर में मनोकामना अभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर को सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित किया गया है। वहीं पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। भगवान की कृपा से इस बार श्रावण 5 सोमवार आ रहे हैं। पहला सोमवार प्रारंभ से ही है और समापन समारोह भी भगवान की कृपा से श्रावण सोमवार से ही होगा। आज प्रातःकाल सोमवार होने के कारण से काफी दर्शनार्थी कतारबद्ध होकर पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को जल, दूध, पंचामृत, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा अर्पण करके भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इंद्रदेव किसी प्रकार प्रसन्न हो जाए और समग्र अच्छी बारिश हो जाए। ऐसी सभी भक्तों के मन में इच्छा है, प्रभु से कामना है, प्रार्थना है, याचना है। हे प्रभु, किसी प्रकार इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और हे प्रभु अच्छी बारिश हो जाए। इस भावना से काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को पूजन अर्चन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर सूर्यनगर गरबा ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा सत्संग समारोह जारी है। 20 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित इस भागवत कथा में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। झंकना शाह और दक्षेश शाह द्वारा श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन और अभ्यास करने के बाद बड़े बूढ़ों की वंदना स्वरूप इस कथा का आयोजन किया गया है। अध्यात्म का अभ्यास कर रहे इस कपल ने भगवत गीता का ज्ञान सभी तक पहुंचाने के लिए ये विशेष आयोजन किया है। कथा के आयोजन में वैष्णवाचार्य वागीश कुमार महाराज जी के आशीर्वाद रहे। वहीं वासु हेल्थ केयर के अध्यक्ष विठल उकानी का सहयोग भी रहा। माता सुनीतिना आशीर्वाद ले छे। सुनीति माता कहे छे कि माता सुरुचिना पण आशीर्वाद ले। शा माटे एवुं कहे छे? जो आपणा मनमा कोईना पण प्रत्येक भाव हशे तो आपणुं मन भगवानमां परवाय ज नहीं। ध्रुवजी तो तप करवा माटे जवाना छे। वो भाव न रहे माटे माताना आशीर्वाद लेવાનું કહે છે। સુરુચિ માતા પાસે જાય છે આશીર્વાદ લેવા। સુરુચિ વિચારે છે સારું જાય તો સારું। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आज सोमवार 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है।
होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गिर सोमनाथ जिला के भालका तीर्थ में स्थित निराली खोड़ियार मंदिर में महंत और महामंडलेश्वर बजरंग दास बापा के आश्रम में गुरु वंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना उद्धार नहीं की तर्ज पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन गिर सोमनाथ जिला के भालका तीर्थ में किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त उपस्थित रहे। गुजरात के दीव में श्री ब्रह्मा समाज द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गणेश स्थापना, शंकर विष्णु का पूजन, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो कि पूजन के साथ हाटकेश्वर महादेव की पूजा की गई। जिसमें गणेश स्थापना, शंकर विष्णु का पूजन, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के पूजन के साथ हाटकेश्वर महादेव की पूजा की गई। इस मौके पर सभी ने अपने गुरुओं को नमन किया। साथ ही 84 ज्ञाति के छात्रों को विभिन्न शैक्षिक वस्तुएं देकर प्रोत्साहित भी किया गया। गुरु पूर्णिमा पर अरवली के देवराज धाम मंदिर में सुबह से ही भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। सभी ने रामदेव जी भगवान के दर्शन कर गुरु भक्ति की। देवराज धाम मंदिर में भजन, भोजन और सत्संग का त्रिवेणी संगम गुरु पूर्णिमा पर देखने मिला। साथ ही यहाँ रामदेव जी भगवान का ज्योत पाठ भी किया गया। वडोदरा जिला के डभोई में भी विभिन्न साधु संत और महंतों के आश्रम में सुबह से ही गुरु पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी श्रद्धालु अपने अपने गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। नगर के अग्रणियों ने भी विभिन्न आश्रमों में पहुंचकर मंदिर के महंत के आशीर्वाद लिए। जेना दिव्य सुदिव्य जे चरितमा वेद यात्रा शैली थी जाए छे। तो गुरुजी हरिप्रसाद स्वामी जी कायम बात करता है कि આપણે જે પુરુષની ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે જે પુરુષના બળે જીવીએ છીએ, આપણે જે પુરુષને કે રાજી કરવા માટે હાહાકાર કરીએ છીએ, એ કોણ અને કેવા છે જો આપણને ખબર નહીં પડે। गुजरात के अंबाजी में भी आषाढ़ महीने की पूनम पर राजस्थान के भीनमाल, वाघोड़ा, मूर्सी गांव से आने वाले संघ ने माताजी को ध्वजा चढ़ाई। तीर्थधाम अंबाजी में हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त माताजी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा ही एक संघ पिछले 32 सालों से पैदल यात्रा कर अंबाजी पहुंचता है। उन्होंने भी गुरु पूर्णिमा और पूनम के मौके पर माताजी के दरबार में शीश झुकाते हुए अन्नकूट का भोग लगाकर मंगल कामना की। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर यात्रा धाम चांदोद के विभिन्न आश्रमों में भी श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाया गया। गुरु की वंदना कर आशीर्वाद पाने का अवसर यानी गुरु पूर्णिमा। इस मौके पर चांदोद के विभिन्न मंदिर, आश्रम और संस्कृत पाठशाला में गुरु पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। चक्रतीर्थ घाट पर बालाजी मंदिर में स्वामी वेंकटेश आचार्य जी का साधकों ने पूजन कर गुरुवाणी का लाभ लिया। त्रिवमजी मंदिर में भी भरतदास जी महाराज की पूजा की गई। वडोदरा जिला के शिनोर में भी नर्मदा नदी के परिसर में स्थित सत्यनारायण मंदिर मालसर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के मौके पर सत्यनारायण मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई।
श्री डोंगरे जी महाराज और श्री प्रेमदास जी महाराज के आश्रम के परिसर में धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें भक्तों ने अभिषेक और पादुका पूजन कर आशीर्वचन का लाभ लिया। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वास्कुलर डे आ रहा है। आदिपुरा हॉस्पिटल इस दिवस पर क्या कर रहा है? Walk with us for a walkathon. Do take advantage of the free diagnostic camp on 3rd August 1 to 4 p.m. at Adikura. Doctor friends, meet us on CME Day. Meet our brand ambassadors, our patients on 4th August. आदिक्यूरा के वास्कुलर सर्जन्स के साथ देखिए ये विशेष बातचीत 28 जुलाई दोपहर 12 बजे सिर्फ VNM टीवी पर। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाडली बहन और लाडला भाई जैसी सरकारी योजनाएं काफी लोकप्रिय हो रही हैं। ऐसी योजनाएं गुजरात में भी चालू करने की मांग वडोदरा आम आदमी पार्टी ने की है, ताकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर गुजरात के लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके। आज हम यहाँ कलेक्टर श्री को आवेदन देकर मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दोगली नीति का प्रयोग कर रही है, जब 2022 में आम आदमी पार्टी का विधानसभा इलेक्शन था गुजरात में, आम आदमी पार्टी ने कुछ राशि महिलाओं के नाम पे देने के लिए बताया था, लाइट बिल कम करने के लिए बताया गया था। तब यही वड़ा प्रधान जी ने ये बताया था कि ये तो आम आदमी पार्टी रेवड़ी बेच रही है। लेकिन 2022 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने हर जगह यही काम किया है। हर जगह पे यही बताया है कि भाई हम आपको राशि देंगे
और ये राशियाँ बांटी गई है। आज महाराष्ट्र के अंदर और एमपी के अंदर एक लाडली बहना की स्कीम चल रही है, लाडला भैया की स्कीम चल रही है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये की राशि सहाय के रूप में दी जा रही है। और जो युवान पढ़े लिखे नहीं हैं, बेकार हैं, उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से या उनकी पढ़ाई के हिसाब से 6000, 8000, 10,000 तक की राशियाँ दी जा रही हैं। तो हम आज आपसे, आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में ये सहाय दे रही है तो गुजरात के साथ ये दोगली नीति क्यों? यहीं से, गुजरात से ही भारतीय जनता पार्टी 30 साल से राज कर रही है और सेंट्रल तक पहुंची है। तो हमारी मांग है कि अगर दूसरे स्टेटों में जो कुछ दिया जा रहा है वो गुजरात के साथ भी अन्याय न किया जाए, उन्हें भी दिया जाए। एक ही देश में 2 तरह के कानून या 2 तरह के नियम भारतीय जनता पार्टी न बनाए और हर एक को एक समझ के दोगली नीतियां बंद करें। गुजरात के वडोदरा में लोगों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कई फिटनेस जिम है, लेकिन अर्बन फिटनेस जिम फ्रीक लोगों का पसंदीदा है और इसीलिए वडोदरा के अकोटा में भी अर्बन फिटनेस जिम का शुभारंभ किया गया है। अकोटा में उर्मी 4 रास्ता निकट इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स में अर्बन फिटनेस का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर इंडियन रॉक दीपक नंदा ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर जिम का उद्घाटन किया। जोएल लुके और कोनिका लुके द्वारा संचालित इस जिम के उद्घाटन के मौके पर दीपक नंदा ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं गुजरात में, वडोदरा। तो भाई पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इतने बड़े जिम की, अर्बन फिटनेस की। कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा होगा जहाँ पे टच की ट्रेडमिल है, कि आपको इन्होंने ध्यान रखा हुआ है कि ट्रेडमिल करते करते जो लोग बोर हो जाते हैं ना, कि वो बोर ना हो, वो उसका अपना जो देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है और यूट्यूब देखना है, यानी कि आप बोर ना हो, उसका पूरा ध्यान रखते हुए ट्रेडमिल सारी, यानी कि हायर ट्रेडमिल वीवा की लगाई हुई है, जितनी हायर रेंज की ट्रेडमिल है, यानी कि आप बिल्कुल बोर होने का सवाल नहीं है और बहुत यूज जिम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ना तुमपुरी की मशीनें मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता किसी ने लगाई होगी, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि गुजरात में पहली बार फर्स्ट टाइम लगाई है किसी ने। और सारे हायर रेंज की है कि आपका ना ध्यान रखते हुए कि आपके मसल पे कोई भी इंजरी के चांसेस ना हो, यानी कि आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए एक एक मशीनें रखिएगा। तुमपुरी हो गए, वीवा के सारे हायर इक्विपमेंट रखे हुए हैं। तो जो भी आना चाहता है, यानी कि एक अच्छा जिम अपनी बॉडी को बहुत सुंदर बनाना चाहता है, मैं कहूँगा अर्बन फिटनेस में आओ। आपका जो है 4 नियर उर्मी 4 रास्ता, जिसको भी आना है मैं कहूँगा कि आप यहाँ आओ। आपको जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए ना, आपको जो बॉडी बनाने के लिए इंजरी से हट के जो आपको चाहिए हायर रेंज के इक्विपमेंट मिलेंगे। और जो भी आपको, यानी कि क्रॉस ट्रेनर हो गया, ट्रेडमिल हो गया, आपका ऊपर क्रॉसफिट भी है, क्रॉसफिट भी पूरा ध्यान रखा हुआ है आपकी बॉडी के लिए। तो देर मत करना भाई, मैं तो कहूँगा अगर मेरा घर होता है यहाँ पे तो मैं यही आता एक्सरसाइज करने के लिए। गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों में आज धुआंधार बरसात बरस रही है। जूनागढ़ के मेंदररा में भारी बारिश के चलते मधुबंती डैम ने रौद्र स्वरूप धारण कर लिया है। बड़े पैमाने पर पानी की इनकम के चलते डैम ओवरफ्लो हो रहा है। मेंदररा तालुका की जीवन डोर माने जाते मधुबंती डैम के ओवरफ्लो होने से लोगों में खुशी का माहौल है और नए पानी की पूजा भी की गई। डैम के ओवरफ्लो होने से किसानों में भी खुशी की लहर है, लेकिन मेंदररा में हो रही ज्यादा बरसात के चलते मूंगफली और सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है, जिससे पीड़ित किसान सरकारी मुआवजा मांग रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिला में भी आज बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। करीब सुबह से ही बरस रही बारिश के चलते माहौल में ठंडक फैल गई है। पिछले कई दिनों से लोग बरसात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वडोदरा में आज धीमी धीमी ही सही लेकिन काफी बरसात दर्ज हुई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है।
गुजरात के वडोदरा जिला के करजन में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते करजन पालिका के सामने ही घुटनों तक पानी भर गया है। करजन पालिका के सामने ही तालाब जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में ड्रेनेज का पानी ओवरफ्लो होकर बरसाती पानी में मिक्स हो गया है, जिससे गंदगी फैल रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में करजन पालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही संपूर्ण रूप से असफल नजर आ रही है। वडोदरा के डभोई में भी बरसाती माहौल देखा जा रहा है। काले काले बादलों के साथ यहां धीमी धीमी बरसात दर्ज की गई, जिससे सड़क पर पानी बहता हुआ नजर आया। वहीं मौसम में भी ठंडक फैल गई। बारिश से कई इलाकों में जलभराव भी देखा गया। गुजरात के अमरेली के धारी तालुका के गोपाल ग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चांदीपुरा वायरस से निपटने पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें चांदीपुरा वायरस से निपटने के लिए तालुका और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी दी गई। किसी भी बच्चे में वायरस के लक्षण देखने पर तत्काल इलाज पर मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें गोपाल ग्राम के सरपंच और सभी सदस्य उपस्थित रहे। आज प्राथमिक आरोग्य केंद्र गोपाल ग्राम खाते तमाम स्टाफ कर्मचारी આજે રિવ્યુ મીટિંગ લેવામાં આવી, જેમાં વિવિધ રોગો હાલ આપણે ગુજરાતમાં ચાંદીપુરમ રોગ જે છે ચાલી રહ્યો, તો એના વિશે તમામ કર્મચારીને માહિતગાર કરી અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તળેના તમામ ગામોમાં આ જે ચાંદીપુરમ રોગ વિશે જે માહિતી તમામ કર્મચારી આપે અને આ રોગને ફેલાતો અટકાવે એ માટેના તમામ રિવ્યુ તથા તમામ પ્રોગ્રામ વિશે તમામ કર્મચારીનું રિવ્યુ લેવામાં આવેલ અને ચાંદીપુરમ રોગ જો કોઈ એવું હાઈ ગ્રેડ ફીવર સાથે કોઈ જોવા મળે તો તાત્કાલિક એને પેરાસિટામોલ સિરપ ટેબ્લેટ આપવાની અને જો એને વધારે જરૂર જણાય તો જિલ્લા કક્ષાએ કે જ્યાં ઓક્સિજનની જરૂરિયાત હોય, વેન્ટિલેટરની જ્યાં સુવિધા હોય ત્યાં એને રિફર કરવા। અને આ જે રોગ છે એ એક માખી સેન્ટ ફ્લાય નામની માખીથી થાય છે, તો ગંદકી દૂર કરાવવી, તમામ નગરપાલિકામાં એને જાણ કરવાની, ત્યાં ગંદકી હોય તો દૂર કરાવડાવવાની, ગ્રામ પંચાયત હોય તો ત્યાં પણ મળી અને આવી ગંદકી દૂર કરાવી। આ માખી જે કાચા મકાન હોય અને જે તિરાડ ભેજવાળી જગ્યા અંધારી જગ્યાએ આ માખીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે, તો જો આવું કંઈ જોવા મળે તો આપણે એને તકેદારીના ભાગરૂપે આ બાળકોને આ રોગ 14 વર્ષથી નીચેના બાળકોમાં વધારે જોવા મળે છે, તો એમને તકેદારીના ભાગરૂપે આ બધું સમજાવવું। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग के शरण के मामले के बाद अब मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा में दरार आने का मामला उठने लगा है। सावन माह के पहले सोमवार को बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने इस पर कहा कि विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा शिवना नदी में मिली थी। आज ही मुझे जानकारी मिली है कि प्रतिमा के ऊपरी हिस्से मुख में बड़ी दरार आ गई है। ये बहुत चिंता का विषय है। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही मंदिर के प्रशासक मंदसौर कलेक्टर को सूचित किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया का कहना है कि मूर्ति में दरारें आना बेहद चिंता का विषय है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि प्रतिमा का शरण हो रहा है, तो तुरंत मैंने मुख्यमंत्री को एक्स पर ट्वीट कर सूचित किया है। अभी वर्तमान में वो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसमें लकीर जो है वो दिख रही है भगवान के चेहरे पे। विगत 6 सालों से मतलब यथावत हम लोग देखते आ रहे हैं। पंडित जी से भी अभी बात हुई थी। विगत कई वर्षों से वो लकीर देखने में आ रही है और वो यथावत है। अभी वर्तमान में आज जो है देखने में आ रहा है कि वो आज अगर ऐसी चोरी हुई है तो वो आज नहीं हुई है, वो विगत कई वर्षों से यथावत है। देखिए, आज ही श्रावण का पहला सोमवार है वर्ष 2024 का, और तब जब मुझे सुबह 7:15 और 8 के बीच में जब सोशल मीडिया पर मुझे दरारें दिखती हुई फोटो प्राप्त होता है या दरारों से पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिमा को बताया जाता है वीडियो के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से मेरी चिंता इस बात को लेकर हो रही थी कि ये दरारें बड़ा स्वरूप न ले ले
और इसीलिए मैंने उठते ही सबसे पहले आज सारा परिदृश्य देख करके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, और चूंकि कलेक्टर मंदसौर इस पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, उनको टैग करते हुए मैंने एक्स पर इस बात की सूचना दी है कि ये भव्य और दिव्य प्रतिमा है, नयनाभिराम प्रतिमा है, ये विश्व की अद्वितीय प्रतिमा है। और अगर ऊपर के मुख डैमेज हो रहे हैं, उसमें दरारें पड़ रही है, तो चिंता स्वाभाविक है। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास और इस भरोसे के साथ। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, कलेक्टर को भी लिखा है कि भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और मध्य प्रदेश की सरकार का भी जो पुरातत्व विभाग है, जिसमें विषय विशेषज्ञ हैं, एक टीम का गठन कर करके किस प्रकार से इस प्रतिमा को बचाया जा सके। शरण रोकना हमारा दायित्व बनता है। दरारें किस प्रकार से भरी जाएगी, और अगर दरारें नहीं भरती है और ये प्रतिमा ही यदि हाथ से निकल जाएगी तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। इसलिए मैंने इसको एक्स पर पोस्ट किया है, और तमाम सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से पूरे समाज में बात चली है। तो मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के इस प्रतिमा ने वैसे भी बहुत लंबा संघर्ष किया है। ये तब जब शिवना मैया में से मिली थी, नदी में से निकली थी, तब भी इसके नीचे के 4 मुख नदी में डूबे होने के कारण से कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए थे। और बीच में जब तत्कालीन कलेक्टर जी के सारस्वत थे, तब प्रतिमा का लेप करने को लेकर के औरंगाबाद से यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम भी आई थी, और उन्होंने नीचे का मुख सुधारने का काम किया था। आज ऊपर के मुख में सर से लेकर के और होठ से लेकर के और गाल तक एक बड़ी लंबी दरार दिखलाई पड़ रही है। इस दरार की चिंता हमें डरा रही है। इस मामले मंदिर समिति प्रबंधक की ओर से राहुल लुड़वान और पुजारी कैलाश भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विगत कई वर्षों से मैं यहाँ प्रबंध समिति की तरफ से सेवा पूजा अर्चना करता आ रहा हूँ। मैं प्रारंभ से ही जो ऊपर के मुख में जो दरार है, प्रारंभ से दिखने में आ रही है, जिसी प्रकार की बनी हुई है, न तो इसमें घटी न बढ़ी, इसी प्रकार की दरार, क्योंकि प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति होने के कारण से कई वर्षों तक जब शिवना की नदी की गोद में रही, उसके कारण से ये जो दरार है, ये प्रारंभ से ऐसी कैसी है, न तो ये घटी है न बढ़ी है, इसी प्रकार की ये दरार थी। नीचे के मुखों में कई प्रकार के जब ऊपर लेपन किया गया था नीचे के मुखों में, तो उसके कारण से कई प्रकार के शरण की स्थिति उत्पन्न होती थी। उस प्रकार से प्रबंध समिति द्वारा उसमें शरण नीचे के मुखों को समय समय पर इसको वर्तमान अवस्था में कैसी है? वर्तमान अवस्था में भी नीचे के मुखों में भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद पश्चात अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी होगी। विगत लगभग 600 वर्षों तक ये प्रतिमा शिवना की गोद में रही, जिसके नदी के अंदर रही, जिसके कारण से कई प्रकार पत्थर की चोटें, कई प्रकार के रेती और जल से इसमें काफी वर्षों तक जब नदी में रही, तो हो सकता है इसके कारण से इसमें थोड़ी कमी। पड़ोसी देश भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत यात्रा पर हैं। आज वे गुजरात के वडोदरा पहुंचे, जहां गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के 5वें राजा एवं वांगचुक वंश के मुखिया हैं। वे किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उनका जन्म 21 फरवरी 1980 में हुआ। वो भूटान के राजा रहे जिग्मे सिंघे वांगचुक एवं उनकी तीसरी रानी अशी के सबसे बड़े बेटे हैं। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे सोमवार को नर्मदा जिले स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे। इससे पहले वडोदरा एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। इस अवसर पर प्रोटोकॉल राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, वडोदरा मेयर पिंकी सोनी, भूटान के भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालय के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी नीरज कुमार झा, वडोदरा जिलाधिकारी बिजल शाह, शहर पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कोमर, चांसरी के प्रमुख संजय धिनले समेत कई उच्च अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में शहर को स्मार्ट बनाने की एक और बैठक का आयोजन किया गया। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट पर म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। आज एक तो स्मार्ट सिटी बाबत एक बैठक मળી હતી, જેમાં સિટી માટે આઈટીના વધારે સોલ્યુશન અને સ્માર્ટ સિટીના પ્રોજેક્ટો બાબતે ચર્ચા થઈ હતી, જેમાં ખાસ કરીને ઇન્ડસના ટાવર
ERP પ્રોજેક્ટ અને એ બધા વિષયો ઉપર ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી. સાથોસાથ એક ચોમાસાની ઋતુ ચાલે છે એટલે પાણી લીકેજના અને કોન્ટામિનેશનના જ્યાં જ્યાં પ્રશ્નો આવે છે એની માટે પાણીના જેટલા પણ અમારા એન્જિનિયર્સ છે વોર્ડ ખાતાના અને ઝોન લેવલના અને હેડ ઓફિસના પણ એમની સાથે એક વિસ્તૃત બેઠક થઈ હતી. જોડે જોડે આરોગ્યના જે અમારા એમઓએસ છે એની જોડે અને પાણી પુરવઠાના કોઓર્ડિનેશનના જે પણ ઇસ્યુ હતા એને સોલ્વ કરવા માટેની અને પાણીના પ્રેશર જ્યાં ઓછા આવતા હોય અને લાંબા ગાળાનું પ્રોગ્રામ પ્લાનિંગ કઈ રીતે થઈ શકે એના માટેની આખી એક સમગ્ર બેઠક હતી. મેં આપને કીધું એ પ્રમાણે જે સ્માર્ટ સિટીની છે જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રી ટાવર, ERP પ્રોજેક્ટ અને આગામી સમયમાં સિટીમાં વધારેમાં વધારે આઈટી સોલ્યુશન આવે અને આઈટી બેઝ પ્રોજેક્ટ આવે, લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થાય એની માટેની ચર્ચા હતી. અને જોડે પાણી પુરવઠામાં હેલ્થ માં જ્યાં જ્યાં લીકેજીસના પ્રશ્નો હોય એને ત્વરાએ સોલ્વ કરવા, એક લાંબા ગાળાનું આયોજન કે જ્યાં જ્યાં લીકેજીસ છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં આવ્યા છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી એને एक मोटो प्रोजेक्ट ताकि सदंतर रीते आ प्रॉब्लम सॉल्व થાય. आने वाले 7 दिन गुजरात में क्या रहेगा मौसम का हाल, इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव ने बताते हुए कहा कि गुजरात के कई शहर जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजराती स्टेट के लिए फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है. और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली, जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है. और वेरी हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, डांग और तापी के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है. और हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो आज के लिए अहमदाबाद, आनंद, दाहोद, महिसागर और छोटा उदयपुर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है. और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली. और जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है भरूच, सूरत, डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है. और जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है. और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली. और जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है. गुजरात की कच्छ की धरती पर फिर से चीते चहलकदमी करेंगे. गुजरात सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यहां पर एक संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दे दी है. कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला है. कच्छ की बनी ग्रासलैंड चीतों के लिए अनुकूल मानी जाती है. सफेद रेगिस्तान सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पहले ही कच्छ दुनिया भर में अपना डंका बजा रहा है और अब कच्छ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है. कच्छ में फिर से चीते की वापसी होगी. गुजरात सरकार ने कच्छ में चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है. गुजरात के कच्छ के बनी में चीता बिल्डिंग सेंटर के लिए प्रशासनिक अनुमति मिले जाने से फॉरेस्ट विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. बन्नी के भगाड़िया इलाके में चीता बिल्डिंग सेंटर में ही पिंजरे के अंदर बच्चों को बड़ा करने का आयोजन किया गया है, जिसमें पानी के पॉइंट 1 तालाब, आर्टिफिशियल शेड, बैठकर चीते का निरीक्षण करने के लिए माउंट समेत की सुविधाएं विकसित की जाएंगी. साथ ही पिंजरे में चीते को भी हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी. बनी ग्रासलैंड डिवीजन के DCF BM पटेल ने चीता बिल्डिंग सेंटर प्रोजेक्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया है. आ प्रोजेक्ट अंतर्गत આપણે જે ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનાવેલો જેની વહીવટી મંજૂરી 2 અઠવાડિયા પહેલાં આપણને ગુજરાત સરકાર તરફથી મળેલી છે. તો એ વહીવટી મંજૂરીના આધારે આપણે ટેન્ડરિંગ પ્રોસિજર અત્યારે શરૂ કરેલી છે અને એમાં ખાસ કરીને જે પ્રોજેક્ટ એરિયા છે 500 હેક્ટર એને આપણે ફેન્સિંગ જે કરવાની છે એના ટેન્ડરિંગ માટે તાંત્રિક મંજૂરી આપણે મેળવવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલી છે. ખાસ કરીને બાંધકામની વાત કરીએ તો જે મુખ્ય બાંધકામ છે આ 500 હેક્ટર એરિયાનું ફેન્સિંગ છે જે એવરેજ 10,000 મીટર જેટલું થાય છે રનિંગ મીટરમાં. એ કામગીરી મુખ્ય છે. એના સિવાય અંદરના વિસ્તારોમાં આપણે એવરેજ 50 હેક્ટરથી લઈને 100 હેક્ટર સુધીના બીજા
બોમા બનાવવાના છીએ, જેને સોફ્ટ રિલીઝ બોમા કહે છે, જેમાં ચિત્તાને આપણે મૂકવાના છીએ. હાલ અમારા જે સ્ટાફ છે 5 સ્ટાફ એ અત્યારે પ્રોજેક્ટની કામગીરીનું ધ્યાન રાખી રહ્યા છે, પણ જ્યારે એકવાર ચિત્તા લાવવાના થશે ત્યારે દરેક ચિત્તા પાછળ મોનિટરિંગ ટીમને એલર્ટ કરવાનું પ્લાનિંગ પણ અમે કરી રહ્યા છીએ. ચિત્તા મુખ્યત્વે આપણે આફ્રિકાની જે સાઉથ આફ્રિકા અથવા નમીબિયા કેન્યાની જે વસ્તી છે ચિત્તાની, ત્યાંથી આપણે લાવવાનું પ્લાનિંગ છે. એ NTCA મારફતે થશે અને ખાસ કરીને એરલિફ્ટિંગથી લાવવાના થશે. જે પ્રોજેક્ટ એરિયા છે બગાડિયા, એની આજુબાજુના જે ગામ છે જેમ કે બુરકલ છે, હાજીપીર છે, બિટારા છે, લુણા નાના મોટા છે, સસલો બગાડિયા, આ બધા જ ગામના આગેવાનો સાથે અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય શ્રી માનનીય કેશુભાઈ સાથે અમે એક મિટિંગ કરી હતી અમારા સિનિયર ઓફિસર સાહેબની હાજરીમાં, અને દરેકને પ્રોજેક્ટ બાબતે સમજ આપી હતી કે આમાંથી એમના માલઢોરને કોઈ નુકસાન નથી, કારણ કે સમગ્ર પ્રોજેક્ટ એક ફેન્સિંગમાં જ આપણે હાથ ધરવાના છીએ. તો એ લોકો સર્વસંમતિથી પ્રોજેક્ટ એરિયાનો વિસ્તાર નક્કી કરીને અમને આપેલો છે. गुजरात के कच्छ की गलपादर जेल में बॉर्डर रेंज IG चिराग कोरड़िया के आदेश पर छापेमारी की गई. पुलिस की सरप्राइज विजिट में जेल के कुख्यात और हिस्ट्री शीटर आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, शराब की बोतलें इत्यादि बरामद किया गया था. जेल में से चलाए जा रहे नेटवर्क का कच्छ पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसके बाद जेल प्रशासन हरकत में आ गया है. जेल के इंचार्ज जेलर LV परमार सूबेदार और S देवड़ा हवलदार, पिंकेश पटेल सिपाही, रविंद्र मुड़िया और शैलेश खेतरिया को ड्यूटी से हटा दिया गया है. इस जेल में हिस्ट्री शीटर आरोपी शराब की महफिल बनाते हुए पकड़े गए थे. साथ ही उनके पास से नगद और मोबाइल समेत का मुद्दामाल भी बरामद हुआ था. कल रात को लगभग 10 साढ़े 10 के आजू बाजू कच्छ जिला पुलिस की टीम द्वारा, जिसमें LCB, SOG, A डिवीज़न, B डिवीज़न, आदिपुर सभी अधिकारी और हम सब ने साथ में मिलकर हमारे स्टाफ के साथ में गलपादर जिला जेल में जो है एक सरप्राइज चेकिंग की. ये चेकिंग के दरमियान अलग अलग बैरक से, अलग अलग जगहों से प्रतिबंधित वस्तुएं जो है वो पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें मोबाइल 4 मोबाइल है, 50,000 रुपये कैश. उसके अलावा जो है पुलिस को इसमें और भी आइटम्स जो मिले हैं जो प्रतिबंधित थे, जिसमें खास करके जो शराब कुछ लोग जो सेवन कर रहे थे, ऐसे 6 व्यक्ति और कुछ शराब की मात्रा भी मिली है. ये सारे अलग अलग जो प्रतिबंधित वस्तु जो है पुलिस को जब्त की गई है. इसमें पुलिस ने अलग अलग ऑफेंस रजिस्टर किए हैं, जिसमें प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत और साथ साथ में प्रिजन एक्ट के अंतर्गत ये सभी ऑफेंस जो है वो A डिवीज़न पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुए हैं. और इन सभी ऑफेंस की जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है. इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग एंगल में, सभी एंगल में तपास करने में आएगी कि ये प्रतिबंधित वस्तु कैसे अंदर जेल में पहुंची थी, किस तरह से पहुंच रही थी, किसकी मदद से पहुंच रही थी, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ निकलेगी उस बेस पे आगे की तपास की जाएगी. जो ये चीज़ जो है वहाँ के जेल के प्रेमाइसेस के अंदर पुलिस को मिली है, उसमें किस तरह से पहुंच रही थी, कैसे पहुंच रही थी, कहाँ से आया, ये सारी एंगल्स में पुलिस द्वारा तपास की जाएगी. उत्तर प्रदेश के कानपुर में कपड़ा कारोबारी नदीम की हत्या का मामला 5 जून को सामने आया था, जिसे हत्या के बाद उन्नाव के कुएं में फेंक दिया गया था. इस मामले में तफ्तीश में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पति के मौत के बाद प्रेमी के साथ रहने के चक्कर में सगी मां ने ही 2.5 लाख रुपए में सुपारी देकर बेटे की हत्या करवा दी. यह मामला कानपुर इफ्तिखराबाद के अलहड़मड़ रेसिडेंसी का है, जहां प्रॉपर्टी के चक्कर में मां ने अपनी ही औलाद का कत्ल करवा दिया. कानपुर नगर में जो भी मकान दुकान है उस प्रॉपर्टी को बेचकर वापस से अजमेर जाकर बसना चाहती थी, लेकिन नदीम इसमें बाधक हो रहा था, जिस कारण नदीम की मां आरिफा बेगम नदीम को रास्ते से हटाना चाहती थी और उसने अजमेर के निवासी एक पेशेवर हत्यारे को किराए पर लिया और 2.5 लाख रुपए में हत्या करने का मामला तय हुआ. 16 मई 2024 को सलीम आकर कानपुर नगर उन्नाव होते रेकी किया था और उस समय यह घटना को अंजाम नहीं दे पाया था. बाद में 2 जून को फिर उसको बुलाया गया और इसको बुलाने में इसकी मां ने काफ़ी सहयोग दिया और हासम अली जो अजमेर का निवासी है उसने सलीम को तय किया 2.5 लाख रुपए में
और उसको 75,000 रुपये दिए गए थे। उसने 4 तारीख की रात में नदीम को कानपुर नगर परेड से ले जाकर देवा शरीफ बाराबंकी ले गया। वहाँ से फिर रात में 12 बजे दरबारी खेड़ा थानागंज क्षेत्र में आकर कुएं के पास उसने जो है सलीम को गांजा लाने के बहाने बैठाया और चाकू से उसके गला काट कर हत्या करके लाश को कुएं में डाल दिया था। इस बार का बजट तय करेगा देश का भविष्य। क्या होगा आपके टैक्स पर असर? क्या सस्ता होगा और क्या होगा महंगा? क्या पड़ेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष पर असर? आम जनता से लेकर राजनेता और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। 3 दिन का महाकवरेज देखते रहिए सिर्फ वीएनएम टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात देश भर में यही है कि कल बजट में क्या होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आखिरकार क्या निकलेगा, उस पर देश भर की नजर है। क्या युवाओं के लिए कुछ खास होगा? क्या छात्रों के लिए कोई खास ऐलान होंगे? क्या किसानों को एमएसपी पर दाम मिल पाएंगे? सरकारी योजनाएं कितनी हद तक बदलेगी? महिलाओं को महंगाई से कितनी आजादी मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब आज जनता सरकार से पूछ रही है और कल सरकार इसका जवाब देगी। क्या होगा और क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इस पर आज देश अटकलें लगा रहा है। और मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए वडोदरा शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव शाह सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। नमस्ते सर, फिर एक बार बजट पर देश की निगाहें टिकी हुई है और आप ये सारी चीजों को हमेशा स्टडी करते रहते हैं। अगर मैं प्राथमिक तौर पर पूछना चाहूँ तो क्या बजट में क्या होना चाहिए? देश को क्या क्या मिल सकता है इस बजट में? से पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये साल का बजट के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या कंपल्सन है। जी। इसके पहले जो बजट थे वहां सरकार की पूर्ण बहुमत थी। इस टाइम सरकार की पूर्ण बहुमत नहीं है और एक कोएलिशन गवर्नमेंट के कंपल्सन के अंडर में ये बजट का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। इसीलिए मतलब उनको कोएलिशन पार्टनर्स के डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग के ऊपर ज्यादा झोंक आने वाला है। तो इस बजट में ज्यादा कर कटौती की कोई एक्सपेक्टेशन करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है और अदर पार्टनर्स का काफी प्रेशर है और कॉमन मैन, पर्टिकुलरली रूरल सेक्टर, पुअर पीपल, उनके लिए जो एलोकेशन है ज्यादा होने वाला है। सबसे अच्छी चीज जो लास्ट बजट में मैं देखी थी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये साल वही चीज चालू रहे, वो है कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर जो झुकाव डाला है। लास्ट टाइम 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन किया था, उसकी वजह से काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए रोजगारी काफी बढ़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से इस साल भी ये झुकाव चालू रहेगा टुवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट ने काफी नई होराइजन इंडस्ट्रीज है, जैसे ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन पावर है, हाइड्रोजन एनर्जी है, उसके लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स की जो जाहिरात की है उसमें काफी अच्छा सुधार आ सकता है, ऐसा मेरा पक्का मानना है। नाउ हम पहले बात करें कि कॉमन मैन, जो सबसे नीचे वाले लोग हैं, सैलराइड लोग हैं, नॉर्मल पीपल है, उनके लिए क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मिल सकता है। तो सबसे लोगों का पहले एक्सपेक्टेशन होता है कि इनकम टैक्स का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो बढ़े तो लोगों का टैक्स का डिडक्शन कम हुए। तो आज की तारीख में जो 3 लाख का लिमिट है, तो मेरा मानना है कि कंसीडरिंग द कोएलिशन गवर्नमेंट कंपल्सन्स, ये लिमिट 5 लाख तक बढ़ने की पूरी संभावना है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग 8.5 लाख तक का इनकम पा रहे हैं उनके लिए कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये एक अनाउंसमेंट आने की काफी उम्मीद है।
जी। और दूसरी जो है कि काफी अंडर 80C के लिए लोग जो प्रोविडेंट फंड में, LIC में सब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 80C का जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है बहुत सालों से 1.5 लाख रुपए का इनका लिमिट है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो भी उसको टैक्स कटौती नहीं मिल रही है। इस टाइम काफी ऐसे उम्मीद है कि 1.5 लाख से 2 या 2.5 लाख तक उम्मीद बढ़ने जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात करें कि आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम सब कंपनियों ने बढ़ा दिया है, लोगों को इसके लिए ज्यादा पैसा खरीदना पड़ रहा है, लेकिन उसमें से इनकम टैक्स की कटौती बहुत कम मिल रही है, अप टू 50,000 ओनली। वो काफी साल से 50,000 रुपया है, उसका एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि 50 से 75,000 या अप टू मैक्सिमम 1 लाख तक कटौती मिले, तो सामान्य लोगों को हेल्थ प्रीमियम भरने के बावजूद भी कटौती मिले। ऑफ कोर्स नई स्कीम एक्सपेक्टेड है कि सीनियर सिटीजन जो है 70 इयर्स के ऊपर को 5 लाख मिनिमम 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट एनी लिमिटेशंस आने की काफी उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत सारी डिमांड है और ये काफी एक्सपेक्टेड है। ये कॉमन मैन का एक दूसरा भी एक होम लोन्स के लिए जी, कि लोग ज्यादा से ज्यादा होम लोन लेते हैं, तो उनके लिए अभी जो इंटरेस्ट लेते हैं लोन के ऊपर, वो 2 लाख रुपए का जो कटौती मिलती है इनकम टैक्स के ऊपर, वो 2 लाख से बढ़कर 2.5 या मैक्सिमम 3 लाख तक वो बढ़ोतरी बढ़ सकती है। इसकी वजह से लोगों को होम लोन लेने में ज्यादा अट्रैक्ट होके ज्यादा होम के लिए, होम नए खरीदने के लिए वो जा सकते हैं। सर एक सवाल मेरा यहाँ था, या पर्सनल लोन भी आजकल लोग बहुत ले रहे हैं, क्या उसमें कोई रियायत या छूट छाट आप देख रहे हैं? नहीं मैडम, पर्सनल लोन इज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, लाइक घर में शादी है या फर्नीचर लाना है, घर में रिनोवेशन करना है, तो ये पर्सनल थिंग हो गया, उसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उसमें कोई कटौती आए। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो से रियल एस्टेट सेक्टर में भी ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आज की तारीख में जो 5% GST का रेट है, तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है। इसकी वजह से लोगों को स्ट्रेट 5% GST भरना पड़ रहा है। वो एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्री से या एसोसिएशन से कि उसको भले बढ़ा के 12% कर दे, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले तो वो उसका खर्चा काफी तक कॉम्पेंसेट हो जाए। तो ये भी रियल एस्टेट सेक्टर का एक एक्सपेक्टेशन है। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, तो इसमें आज हम जान रहे हैं कि छोटे छोटे इंडस्ट्री पे भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का मामला काफी बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल एक इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है, बड़ी चिंता हो रही है देश के विषय, देश के लिए चिंता का विषय है। तो कंपनियों के लिए सेपरेट साइबर पॉलिसीज निकाली गई है कभी इंश्योरेंस कंपनियों ने, तो प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें जो गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स का प्रावधान, कटौती का प्रावधान आए, ऐसी काफी उम्मीद है। तो लोगों उसके ऊपर जाए, तो जहां जहां लॉस हो जाए, सभी कोई लोगों को 5 लाख का घाटा हो जाता है, 10 लाख का लॉस हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो कॉम्पेंसेट हो सके। तो ये एक इंडस्ट्री का डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी काफी डिमांड, GST का रेशनलाइजेशन का डिमांड भी है। तो ये मेरे ख्याल से जो कॉमन मैन के लिए जो स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा बनेगी, जैसे PM का किसान सम्मान योजना के निधि जो है, वो एज फार एज आई नो इट इज अबाउट 8,000 रुपीज अन ईयर। मेरे ख्याल से वो बढ़ के सबको एटलीस्ट 10,000 तक, 2,000 की उसमें ज्यादा बढ़ने की उम्मीद। तो हर एक किसान को सालाना जो अभी मिल रहा है उससे 2,000 से ज्यादा, 2 से 3,000 ज्यादा मिलेगा। तो ये किसान वर्ग को भी एक आश्वासन मिलेगा कि सरकार हमारे साथ है। और किसान को MSP पर दाम मिले, ऐसी भी मांग हो रही है, क्या उसका कोई कदम उठाए जाएंगे? देखिए, MSP की मांग के लिए ऐसा है कि उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑलरेडी कमिटी फॉर्म की हुई है और उसका रिकमेंडेशन आ चुका है, और उम्मीद है कि MSP के दाम में स्ट्रेट बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन आ जाएंगी। क्योंकि उसमें कैसा है कि MSP के लिए
काफी रिच फार्मर्स भी हैं और छोटे फार्मर्स भी है, मार्जिनल फार्मर्स भी है। तो हर एक को ये बेनिफिट मिले वो सरकार नहीं एक्सपेक्ट कर रही है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से कोई फॉर्मूले ऐसी आ सकती है कि जो मार्जिनल फार्मर्स है, छोटे खेत वाले हैं, तो उसके लिए उनको ज्यादा बेनिफिट मिले और रिच फार्मर्स जो है वो उसमें से बाकात हो जाए, ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है। जी सर, स्लैब टैक्स में कोई बदलाव या जीएसटी में कोई नया स्लैब आ सकता है क्या? ऐसी कोई उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग? जीएसटी में टैक्स रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि हर महीने जीएसटी का जो कलेक्शन होता जा रहा है वो हर महीने बढ़ता जा रहा है और साल से साल हो रहा है। जी हाँ, तो गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम जीएसटी का कलेक्शन है और वो जो जीएसटी का कलेक्शन आता है वो सब पुअर लोगों की स्कीम जो है उसके लिए एलोकेशन में यूज होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक्सेप्ट रीएलोकेशन ऑफ सम टैक्स रेट्स से 18 से 12 किया जाए या 24 से 18 किया जाए, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि जो काफी कॉमन मैन के लिए जो चीज है जिसका 12% से उसके लिए 5% की जाए, ऐसी उम्मीद है। बाकी टैक्स रेट में कमती होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है जी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कैश काउ है जीएसटी कलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब लोग भी और व्यापारी भी काफी यूज टू हो गए हैं जीएसटी से। पहले जितनी हाई तौबा मची हुई थी अब सबको जीएसटी शायद समझ में आ गया है। और दूसरा क्या है कि जीएसटी की वजह से ब्लैक इकोनॉमी, कैश कलेक्शन, कैश बिजनेस कम हो, काफी हद तक कम हो गया है। इसके लिए उसकी इनकम गवर्नमेंट को जा रही है, तो इसलिए उसमें कुछ बदलाव नहीं होएगा। जी सर, उद्योगों के लिए कुछ खास देख रहे हैं? क्योंकि छोटे उद्योग और खासकर अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, क्या उनके लिए बजट में कुछ खास हो सकता है? छोटे उद्योग के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए कई सेक्टर में जीएसटी रेट का कम होने की उम्मीद है, बट वो एक्सपोर्ट रिलेटेड होना चाहिए जहां गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट का फॉरेन करेंसी इनकम होए। वो लिंकेज के साथ शायद कुछ आ सकता है कि आप एक्सपोर्ट करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, एक्सपोर्ट करो और फिर आप रियायत उसके लिए ऊपर कटौती एक्सपेक्ट करो। जी सर, भारत में शिक्षा पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। करोड़ों रुपए का बजट आवंटित हर साल किया जाता है, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा स्तर है वो बहुत ही कमजोर है। और ऐसे अगर इंडिया बढ़ेगा तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जरूर कुछ ठोस करना चाहेगी इस बार? देखिए, बजट एलोकेशन में एजुकेशन में तो काफी एलोकेशन होगा, एजुकेशन टुवर्ड्स एलोकेशन, बट अभी उसमें कहाँ किसी तरह से उसका यूटिलाइज होने वाला है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन, गांवों की स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें प्रावधान होने की काफी उम्मीद है कि गांव के बच्चे लोगों को अभी क्या है कि जैसे डिजिटल एजुकेशन बड़े बड़े शहरों में बढ़ता जा रहा है, तो वो गांव तक चले जाए तो वहां तक वो स्कूलों के लिए इसके लिए स्पेशल सब्सिडी इंसेंटिव्स दिया जाए, ऐसी उम्मीद है। तो गांव के लोग भी डिजिटल बोर्ड के ऊपर जो सेंट्रल से वहां से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंटर से एजुकेशन प्रोग्राम वहां से डिस्प्लेस हो जाए थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी, और वहां बच्चे लोग एक इंटरनेट युग से जुड़ के वो डिजिटल युग का वो स्टडी कर सके। तो शिक्षा में जरूर कुछ होना चाहिए। स्वास्थ्य की आपने बात की, लाइफ इंश्योरेंस की, लेकिन क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए? सरकार कुछ कर सकती है या ऑलरेडी इस तरीके की योजनाएं सरकार के जहन में होगी? डेफिनेटली, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जब भी एडिशनल एलोकेशन पक्का उम्मीद है तो वो एलोकेशन पहले जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रूरल हॉस्पिटल, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राइमरी हेल्थ सेक्टर जो है आज की तारीख में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। वहां से लाने के लिए उनके पास एम्बुलेंस की कमी होती है, वहां प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, छोटे एक्सरे के लिए उनको सिटी में आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहां ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करके
छोटे लोगों को, वहां गांव के छोटे लोगों को वहां ही प्राइमरी सुविधाएं मिल जाए, ऐसा एलोकेशन और हेल्थ एलोकेशन मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्र में बड़े सुधार होने चाहिए। सर, महंगाई पर भी एक सवाल जरूर बनता है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। आप देखिए, सब्जियां बहुत महंगी है, दाल बहुत महंगी है, हर चीज जब महंगी है तो मध्यम वर्ग जो है पिसता जा रहा है। क्या कुछ ऐसा होगा जिससे महंगाई देश में कम की जा सके? देखिए, महंगाई कम करना और महंगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज की तारीख में पहले ऐसा था कि एक लेवल से नीचे रहते हुए लोग कई चीज खाते ही नहीं थे। जी। आज टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट से छोटे से गांव को भी पता चलता है कि मुझे ये लग्जरी आइटम जो है, ये फेस वॉश है, मुझे यूज करना है, या फिर मुझे ये दाल यूज करना है, तुअर की दाल जो एडवर्टाइजमेंट आई है। तो वो जो उनकी जो एक्सेस डिमांड जो आई है, अभी उसके लिए इंक्रीज डिमांड से जो प्रोडक्शन है इज रिमेन द सेम, तो डिमांड हैज गॉन अप, तो उसके लिए प्राइस तो बढ़ेगी, उसके ऊपर महंगाई के ऊपर असर पड़ती है, इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ती है। तो ये बहुत मुश्किल काम मुझे लग रहा है। तो महंगाई तो उस पर लगाम कसना शायद सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क जैसा होगा। जीडीपी ग्रोथ की भी सर बात जरूर होगी। ऐसा कुछ होगा जिससे जीडीपी ग्रोथ है उससे देश को फायदा हो सके, उस तरह की जीडीपी ग्रोथ हम मेंटेन कर सके। देखिए मैडम, जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन हमारा नहीं जी, लेकिन वर्ल्ड बैंक का, IMF का भी हमारा एक्सपेक्टेशन 7 to 7.5% के लिए है, विच इज अ वेरी गुड जीडीपी ग्रोथ रेट as far as the country like India is concerned. तो मेरे ख्याल से ये 7-7.5% जीडीपी ग्रोथ इज अ रियल अचीवेबल ग्रोथ, वहां हमने अचीव किया भी है। और लास्ट टाइम जो जीडीपी का एक्सपेक्टेड रेट था उसको हमने सरपास करके उससे ज्यादा हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वहां से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो एक्सपेक्टेड था उससे बढ़ गया, जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बढ़ गया, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो बढ़ गया, तो इसकी जो इम्पैक्ट है वो जीडीपी में आती है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो 7 to 7.5% का जीडीपी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो पक्का अचीव होगा, विच इज अ वेरी गुड अचीवमेंट एंड माइलस्टोन। सर, महिलाओं के लिए कुछ खास रहने की उम्मीद है, क्योंकि महिलाओं को आकर्षित करना हमेशा हर सरकार को अच्छा लगा है, लेकिन फिलहाल कोई चुनाव ज्यादा हो नहीं रहे हैं। ऐसे में आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा देशवासियों को? महिलाओं के लिए मेरा ऐसा मानना है कि जो रूरल सेक्टर की महिलाएं हैं उनके लिए जरूर कुछ प्रावधान आ सकता है कि उनको संगठित करना, उनको एक कुछ व्यावसायिक प्रोविजन के लिए कुछ इंसेंटिव देना, लोन देना। तो वो जो महिलाएं हैं जो आज की तारीख में घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रही है, तो साथ में बैठ के कुछ मंडली कोऑपरेटिव जैसा बना के वहां कुछ करे, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे, प्रोडक्ट का सेल करे, और उनको लिए ऐसा कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आने की उम्मीद है। महिलाओं की बात हो गई, गरीब वर्ग के लोगों के लिए अगर कुछ हो सकता है तो क्या कर सकती है सरकार सर? गरीब लोगों के लिए तो मैंने जो बताया कि जो सीनियर सिटीजन है, गरीब लोग जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो 70 इयर्स के ऊपर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का आने की उम्मीद है गरीबों के लिए। जो गरीब नॉर्मली हेल्थ के लिए मुश्किल में होते हैं कि आकस्मिक आ जाती है बीमारी, तो उनके लिए पैसा नहीं होता है, बेचारे पैसा की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, सावधान नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है, तो वो लोग अभी नाउ दे विल बी एबल टू अप्रोच द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इंश्योरेंस। तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छा कुछ न कुछ ये इसके बारे में आ सकता है अनाउंसमेंट। जी सर, आखिरी सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा सपना है, भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें रहेगी? देखिए मैडम, ये विकसित भारत और 2047 बजट का ये मामला नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी तैयारी काफी टाइम से चालू कर दी है। आप देखिए कि ये एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का प्रोजेक्ट है, या सबमरीन्स बनाने का प्रोजेक्ट है, या सोलर एनर्जी का इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का ऑलवेज इंसिस्टेंस रहा है कि आप इंडिया में आके बनाइए और इंडिया में बनाइए और फिर सब
आप प्रोविजन, आप सुविधाएं पाइए। तो इसकी वजह से इंडिया में काफी हद तक बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसकी वजह से इंडिया इज गोइंग टू बी द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 10 years, ऐसा मेरा पक्का मानना है। जी, तो आपको लग रहा है कि इस बजट से आम आदमी को फायदा होगा? कल जो बजट आ रहा है उससे से आम आदमी को ओवरऑल सिचुएशन, कोई स्पेसिफिक आम आदमी को फायदा होगा ऐसा मेरा मैं बोल नहीं सकता, पर ओवरऑल जो होगा इसमें काफी महंगाई में कंट्रोल होगा और व्यावसायिक तौर पे उनके लिए रोजगारी के लिए नई तक आएगी, तो एक्स्ट्रा इनकम होगी, एक्स्ट्रा सेविंग होगा, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, वडोदरा के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव शाह सर से हम बात कर रहे थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बजट में कल क्या आएगा उस पर हमारी पूरी निगाहें बनी हुई है। हमें देखते रहना है, जुड़े रहना है वीएनएम टीवी के साथ, ताकि आपके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है वो हम आपको बता सके। और बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम के सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जुड़े रहना है, क्योंकि कल जैसे ही बजट आता है, क्या आता है, किस किस योजना को सरकार आपके लिए लागू करती है, ये सारी चीजें वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचती है। साथ ही एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे कि ये बजट आपके लिए कैसा है, राजनेताओं से इसकी प्रतिक्रिया लेंगे और आम आदमी भी बताएंगे कि आखिरकार सरकार उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है। तो कल दिन भर आपको देखते रहना है मेरे साथ वीएनएम टीवी पर बजट को लेकर महा कवरेज। वीएनएम टीवी जरूर देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।